Good morning, student. Welcome in your science class. Today I going to start your second chapter of your science book, that is Animal Habitat and Adaptation. So, we find thousands of different animals who live on this earth. They live and survive on different types of terrain and climate such as forests, deserts, ponds, rivers, seas, mountains, and snow covered area. We all know that thing in our earth there are different type of areas, and in the different areas the weather conditions and the climates are different. So in this different climates and different weather, the different types of animals live, and they are adapted themselves according to the climate condition. So the surrounding of living organism called habitat. So here the question is come that what is called habitat? Yes, students, this is the important thing. What is called habitat? So you should be know the habitat क्या है. अलग अलग वेदर कंडीशन में जो अलग अलग प्लेसेस में जो अलग तरीका का जो एनिमल्स रहते हैं उसका जो बॉडी का सिस्टम है वो उसी के हिसाब से एडेप्टेड हुआ है. मतलब वो जो भी एनिमल्स जिस प्लेसेस पे रहते हैं उस प्लेसेस में कंफर्टेबली वो ग्रो करने के लिए या कंफर्टेबली उस सर्वाइव करने के लिए उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी हैबिट को कहते हैं हैबिटेट. मतलब हैबिटेट किसको कहा जाता है? अलग अलग डिफरेंट वेदर कंडीशंस में या अलग अलग प्लेसेस में रहने के लिए हम लोग की बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर्स जो भी फीचर्स है उस कंडीशन में वो कंफर्टेबली ग्रो कर सकते, ग्रो मतलब अलाइव कर सकते, उसी को कहते हैं हैबिटेट. नाउ animals adapted themselves in particular environment or habitat. Animals can be divided into two groups. This is important thing. Animals can be divided into two groups. One is invertebrates. One is invertebrates. So what is the invertebrates? Animals without backbone such as animals without backbone such as insect, worms and the others small animals. This all are invertebrates because in this all animals there has no backbone. बैकबोन्स का मतलब क्या होता है? जो पीछे का हम लोग का जो बोन होता है जो कि हेड के नीचे से मतलब शोल्डर के नीचे से जो हम लोग की मतलब वेस्ट तक जो कमर तक जाते हैं सीधा, जिसमें हम लोग सीधा रहते हैं उसको बोलते हैं बैकबोन. যাকে বলে কি মেরুদণ্ড. তো যে সকল প্রাণীদের এই মেরুদণ্ডটা থাকে তাদেরকে বলছে থাকে না তাদেরকে বলছে ইনভার্টিব্রেটস, আর যাদের এই মেরুদণ্ড থাকে তাদেরকে বলছে ভার্টিব্রেটস. सो जिस जो भी एनिमल्स में ये वर्टिब्रेट्स मतलब पीछे का जो है बोन्स वो नहीं रहते उसको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स. हियर हैज़ गिवन सम पिक्चर्स. फॉर एग्जांपल that is snail, that is worms, spider. This type of spider, this all are example of the invertebrates. This all are without backbone. Okay, now second type is vertebrates. Animals with backbone such as fish, frog, crocodile, birds, mammals. See the picture? Frog,
then crocodile and birds, fish. This all are example of the vertebrates. And what are the vertebrates? जिसके पीछे में वो बैकबोन रहते हैं. Those animals have present the backbone. They are known as the vertebrates. Okay, this is clear. So, what you will learn up to here from this chapter? We will learn about the two types of animals. One is invertebrates, another one is vertebrates. What are the invertebrates? Animals without backbone, such as insect, worms, and the other small animals like snail, are called invertebrates because these all animals are not present the backbone. And second one is vertebrates, animals with backbones such as fish, frog, crocodile, birds, and mammals. And all of you know what is the mammals? Mammals is animals or human beings, those are giving birth to their young ones, जो बच्चे को जन्म देते डायरेक्टली और जिसके बॉडी में हेयर रहते हैं, दोज present here in the body and those give birth directly their babies, they are called the mammals. Okay, but this all are example of the vertebrates because these all the animals have present the backbone. Okay, now animals live in different type of habitats. They have different body covering, eating habits, organs for breathing, and the ways of moving from one place to another. So how the animals differ from each other? Animals different कैसे होते एक दूसरे से? क्योंकि ये जो एनिमल्स है वो अलग किस तरह का से होते हैं, इसका जो बॉडी कवरिंग होता है, उसका जो ईटिंग हैबिट्स है, वो जैसे खाना खाते हैं, उसका जो ब्रीथिंग ऑर्गन है, मतलब उसका जो ब्रीथिंग का सिस्टम है उसमें अलग होता है, और उसका मूविंग वेज ऑफ द मूविंग, मतलब वो कैसे मूव करते एक जगह से दूसरी जगह, वो भी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीका फॉलो होता है. नाउ the next page, the first thing is the body covering of animals. So first we are discuss about this topic. The topic is the body covering of animals. What is the topic? The topic is body covering of animals. Now animals have different body covering. First, insect. All insects have their body covered with tiny hard scales. All of you underline the sentence. All insects have their body covered with tiny hard scales. मतलब जो भी इंसेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट का जो बॉडी कवर होते हैं वो कैसे होता है, उसका बॉडी कवर बहुत ही ऊपर का जो पोर्शन से बॉडी कवरिंग वो हार्ड होता है और टाइनी मतलब छोटा छोटा होता है. नाउ नेक्स्ट इज द रेप्टाइल्स. द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? यस, दोज एनिमल्स मूव बाय द क्रॉलिंग ऑन देयर बॉडी. मतलब जो भी एनिमल्स अपने जो चेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर देके जो क्रॉलिंग करते हैं, मतलब जो क्रॉलिंग करके मूव करते हैं, जिसका लेग्स छोटे छोटे जैसे कि लीजर्ड, फिर एंट, ये सारा होता है रेप्टाइल्स. ओके, तो रेप्टाइल्स का बॉडी कवरिंग कैसे है? द बॉडी ऑफ अ रेप्टाइल इज कवर्ड विथ ड्राई hard scales. Yes, important line. All of you should be underline the sentence. The body of a reptile is covered with dry hard scales. Horny scales of reptiles. Horny scales of reptiles prevent water loss from their bodies. Horny scales किसको कहा जाता है? हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न का मतलब होता है सिंग. हॉर्न का मतलब होता है सिंग.
जैसे कि काऊ का हॉर्न होता है, बफेलो का हॉर्न होता है। तो हॉर्नी स्केल्स का मतलब क्या होता है, मतलब इसका जो स्केल्स है इसका शेप हॉर्न की तरह है। सी द पिक्चर, इसका जो शेप सेल का जो शेप है वो देखने में हॉर्न जैसा, मतलब सिंगाकार होता है, उसको बोलते हैं सिंग, बांग्लाয় বলে সিংহাকার আঁশ, সিংহের মতো দেখতে। Horniscles of reptiles prevent water loss from their bodies. So how this type of cell help the reptiles? These horniscles help to prevent water loss from their body. इस तरह का जो स्केल्स होता है, स्केल का मतलब होता है आश, जो बॉडी का कवर, ये क्या करते हैं, इसका एडेप्टेशन ऐसा है कि वो जो बॉडी से जो वाटर है उसको बाहर में जब तक ज़्यादा लॉस नहीं होने देते। मतलब हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग का देखो जब बहुत ही गर्मी होता है तो वी ऑल इज स्वेटिंग, इन ड्यूरिंग द स्वेटिंग द वाटर ऑफ आवर बॉडी इज एक्सक्रेट फ्रॉम आवर बॉडी। तो हम लोग की जब बहुत हम लोग स्वेट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग की बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो निकल जाता है। ज़्यादा देखोगे तुम, अगर ज़्यादा स्वेटिंग करोगे तो थोड़े घंटे बाद, थोड़े टाइम बाद हम लोग को बहुत थकानी होता है। गर्मी के टाइम पे हम लोग को बहुत थकानी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग की जो बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाता है। तो ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाटर और लिक्विड चीज़ खाने के लिए, ज़्यादा फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग की जो एक्सेस वाटर लॉस होता है उसको वो एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही रेप्टाइल्स का जो होता है वो हॉर्नी स्केल उसको प्रिवेंट करते हैं एक्सेस वाटर लॉस होने में। मतलब जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा वाटर ना निकल जाए, उसमें वो प्रिवेंट करते, उसको अटक, उसमें वो उसको अटक करते, मतलब बंद कर देते एक्सेस वाटर निकालने के लिए। नाउ सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड how the horniscale help the reptiles to prevent the water loss from the bodies. Okay, now some animals like tortoise have a sail on their body. Herd's sail protect the soft body of the animal. Some animals, see the picture of the tortoise, their sail is, shape of the sail is like a square box. इसका जो शेप है सेल का, ऊपर का जो आउटर कवरिंग बॉडी है, देखो जो आउटर कवरिंग बॉडी है, जैसे कि ये देखो ये स्क्वायर स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो और ये ऊपर का आउटर कवरिंग है, लेकिन इसके नीचे जो बॉडी का पोर्शन है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो टॉर्टोइस का सेल का काम क्या है, इसका जो अंदर का जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करना, किससे, बाहर की कोई भी एनिमीज से, या तो बाहर की कोई भी मतलब अटैक से, कि जब भी वो बाहर में चलते हैं या तो कोई हर्ड चीज़ से अगर टकराने के बाद उसको चोट लगे, वो सारे जो बाहर की जो चोट है, जो अटैक है एनिमीज से, उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं उसकी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन को, ये जो बाहर का आउटर कवरिंग सेल है। So some animals like tortoise have a sail on their body. Herd cell protect the soft body of the animal. Okay, now next is the fish. So most fish have overlapping scales in rows on their bodies. Overlapping का मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब एक तुम लोग ऑल ऑफ यू सी द फिश एट योर होम, सबको ही अपने घर में फिश तो देखे ही होंगे। तो फिश का जो स्केल्स है थोड़ा सा नोटिस करोगे तो देखोगे वो एक के ऊपर एक रहता है, उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। सो मोस्ट फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स इन रोज ऑन देयर बॉडीज। नाउ द स्केल्स आर फ्लेक्सिबल एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर मूवमेंट। मतलब इसका जो स्केल्स है वो बहुत ही मूवेबल है और फ्लेक्सिबल है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, देखो वो कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाएंगे पानी में। लेकिन फिश का जो स्केल्स है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो स्केल है वो हार्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। सो बर्ड्स, नेक्स्ट इज
Next is birds. A bird body is covered with feathers. A bird's body is covered with feathers. The down feathers close to the body keep it warm. अब बर्ड्स का भी जो फेदर्स है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, मतलब अलग अलग फेदर्स अलग अलग काम करते हैं. देखो कैसे. अब जो अंदर की जो मतलब एकदम बॉडी की क्लोज में जो फेदर्स रहते हैं वो क्या काम करते हैं, वो बर्ड की जो बॉडी है उसको गर्म रखने में उसको हेल्प करते हैं. পাখির ভেতরে যে ফেদার্সগুলো থাকে সেগুলো কী করে, পাখিকে গরম রাখতে সাহায্য করে. সো দ্য ডাউন ফেদার্স ক্লোজ টু দ্য বডি keep it warm. contour feathers cover the body. जो कंटूर मतलब जो बाहर का होता है वो क्या करते हैं, ऊपर से जो होता है वो पूरा बॉडी को कवर करके रखते हैं. feathers of the tail and wings are large and help the bird to fly. So but you see in this thing, in this para, the different feathers of the body of the birds work in the different ways. The first down feathers that is present close to the bird's body, that is keep it warm. जो एकदम अंदर का जो feathers है वो क्या करते हैं, बॉडी को वार्म रखने में, मतलब उसको बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. डाउन फेदर्स क्लोज टू द बॉडी कीप इट वार्म एंड कॉन्टूर फेदर्स कवर द बॉडी. बाहर का जो फेदर्स होता है, ऊपर का जो फेदर्स है वो क्या करते हैं, पूरा बॉडी को कवर करके रखते हैं. एंड फेदर्स ऑफ द टेल एंड विंग्स आर लार्ज दैन द डाउन फेदर्स एंड कॉन्टूर फेदर्स. मतलब जो टेल का फेदर्स है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में डाउन फेदर्स से और कॉन्टूर फेदर्स से, और ये फेदर्स जो टेल का फेदर्स है और विंग्स है वो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मैमल्स. अ मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, फार, ऊल और ब्रिस्टल. ब्रिस्टल मतलब होता है दाढ़ी. ब्रिस्टल का मतलब जो हम लोग किसको बोलते हैं, ब्रिस्टल मतलब दाढ़ी जैसे. ठीक है, जो भी एनिमल्स में जो बड़ा बड़ा जिसका फार होता है, हेयर होता है, उसको बोलते हैं ब्रिस्टल. और वी ऑल नो दिस थिंग दैट मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ द हेयर, राइट. So mammal body is covered with hair, fur and wool or bristle. This body covering keep the animals warm in cold climate and also protect them from rain. As an example, we say that the bear, the fur of the bear protect it from the harsh winter climate, and it protect also from the enemies because the color of the fur of bear is white like a snow. So it help in a two ways. One is it keeps the bear in warm, and another is it protect us from the enemies. Okay, तो मैमल्स का जो हेयर होता है वो क्या करते हैं, एनिमल्स में क्या होता है, जिसका हेयर्स और फर्स बहुत ज़्यादा होता है वो उसको कोल्ड रीजन में जो भी एनिमल्स रहते हैं, पोलर बियर या तो और भी साइबेरियन जो भी होता है, डॉग होता है, बहुत सारा साइबेरियन डॉग होता है, उसको क्या करते हैं, उसका जो फेदर्स है, फेदर्स नहीं, उसका जो फर होता है और हेयर होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, और क्योंकि वो उसको हर्श विंटर क्लाइमेट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको गर्मी रखने में हेल्प करते हैं. Now next is so this portion is body covering of animals. So we all know the different body covering of the different animals. Okay, I repeat one more in shortly. Insects covered with the tiny hard scales, reptiles covered with the hard scales and like a horny scales and the square cell,
and the fish body covered with the overlapping scales. Overlapping का मतलब एक के ऊपर एक. Next, birds have covered with the body with the feathers, different type of feathers and different feathers working in the different way. Next, mammals body are covered with the hair, fur, wool or bristle. Okay. Now next thing is movement in animals. So from this topic we know elaborately that how the different animals move in the different way. Okay, animals move from place to place in search of food and to escape from the danger. So first question is why the animals move from one place to another. Animals जो है वो move क्यों करते हैं? क्योंकि वो शेल्टर की खोज में, खाने की खोज में, और या तो कोई भी अगर उसको ये डर लगे कि कोई उसको हानि पहुंचा सकते या तो उसको अटैक कर सकते, तो उससे बचने के लिए भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, in the picture every animal is not moving in the same way. Yes, see the picture. Here is given some pictures. We all see very clearly that different type of animals move in the different ways. Okay, animals living in land, water and air move in the different ways. Because why they move in the different ways? Because they live in the different places. Because सारा जो एनिमल्स है वो एक ही तरह का जगह पे नहीं रहते, तो अलग अलग जगह में रहने के लिए उसको मूवमेंट भी अलग ही होगा. दैट इज़ वेरी क्लियर. सो फर्स्ट इज द इंसेक्ट्स. सो हियर वी आर लर्न हाउ द इंसेक्ट मूव. Insects have 6 legs to move, crawl, hop और walk. तो देखो इंसेक्ट जो है वो सिर्फ क्रॉल करके नहीं जाते. कोई कोई इंसेक्ट क्रॉल करते हैं, कोई कोई इंसेक्ट हॉपिंग करके मतलब जंप करके जाते हैं, और कोई भी इंसेक्ट वॉकिंग करके जाते हैं. बट वन थिंग इज कॉमन इन दैट केस, द इंसेक्ट हैव 6 legs. Okay. Now insects like grasshoppers have strong hard legs to hop about. Beetles and ants crawl with their 6 legs. देखो कोई कोई इंसेक्ट है जो कि अपने जो लेग होते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, उसी के हेल्प से, जैसे कि ग्रासहॉपर. सी द पिक्चर हियर, सी द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रासहॉपर. So grasshopper, how the grasshopper move from one place to another? Grasshopper move by the help of their strong hard legs to hop. Okay, hopping करके वो move करते हैं. Next, लेकिन जो beetles है, beetles एक टाइप का इंसेक्ट का नाम है beetles, and the ants. beetles एक इंसेक्ट के नाम है, और ant तो सबको ही देखे हो, ऑल ऑफ यू सी द एंट. दे आर मूव बाय द क्रॉलिंग विद देयर 6 लेग. तो एंट और बिटल कैसे मूव करते हैं? वो क्रॉलिंग करके मूव करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, हनी बीज, मस्क्यूटोज, ड्रैगन फ्लाइज एंड द लेडी बर्ड्स कैन फ्लाई easily. Most of the flying insect body have hollow space filled with air, and they also have a pair of wings. जो भी इंसेक्ट है जैसे कि बटरफ्लाइज, हनी बीज, ये सारा क्या होता है? देखो इस उड़ सकते हैं. तो उड़ने के लिए एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन है कि हम लोग को पता ही है, जो भी इंसेक्ट या तो जो भी बर्ड उड़ सकते हैं उसका बॉडी पहले लाइट होना होगा, क्योंकि बॉडी अगर हल्का नहीं होगा तो कोई भी उड़ नहीं सकते. सो जो भी इंसेक्ट उड़ते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, हनी बी, मस्क्यूटो, ड्रैगन फ्लाई एंड द लेडी बर्ड्स कैन फ्लाई ईजीली. हाउ दे कैन ईजीली फ्लाई? बिकॉज देयर बॉडी हैव अ हॉलो स्पेस फील्ड विद द एयर. इसका जो बॉडी होता है, इसका हॉलो मतलब
फापा যেটা বলে एकदम हल्का, hollow space filled with air, उसमें एयर फिल्ड रहते, ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, और जो भी उड़ सकते उसको विंग्स रहना ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज द हेल्प ऑफ द विंग्स दे फ्लाई इजीली. नाउ नेक्स्ट, fish, how the fish move from one place to another. So the most fish have two sets of paired fins. जो फिश है, फिश के पास देखो टू सेट्स ऑफ पेयर, टू सेट्स मतलब एक पेयर में दो रहता है, तो टू पेयर में मतलब फोर, टू पेयर ऑफ फिन्स, one pair is front and the one pair of the back to move in water. Fish, we all know this thing, the fish swim in the water with the help of their fins. fins किसको बोलते हैं? पाखना. तो फिश क्या करते हैं, अपने जो पाखना है फिन से उसी के हेल्प से वाटर में इजीली मूव कर सकते हैं. उनमें से टू फिन्स उसके फ्रंट साइड पे रहते हैं और टू फिन्स बैक साइड पे रहते हैं. The unpaired fins help them to maintain their balance. तो कितना फिन्स हो गया? देखो ऐसे तो फोर फिन्स रहते, ये टू सामने और दो पीछे. इसी के अलावा जो अनपेयर्ड रहते हैं, मतलब अनपेयर्ड मतलब एक भी रह सकते हैं, मतलब पेयर मतलब दो, अनपेयर्ड मतलब एक रहते. तो अनपेयर्ड फिन्स उसमें हेल्प करते, किसमें? मेंटेन देयर बॉडी बैलेंस, उसका जो बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं. द टेल फिन हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग. सो ये ऑल ऑफ दिस थिंग मे बी कम इन योर एग्जाम एज a fill in the blanks. Okay, so all of you learn it very properly. The unpaired fins help them to maintain their balance. The unpaired fins help them to maintain their balance. The tail fin helps it to change its direction while swimming. Okay, maybe the question is come, the dash fins help it fish to change its direction. कौन सा फिन फिश का चेंज करते, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द टेल फिन. ओके, जो लेज में जो फिन रहते वो फिश राइट साइड में जब जाते हैं तो उसका डायरेक्शन, टेल का फिन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होता है, मतलब ऑपोजिट साइड्स में होता है. जब उसका फिन्स राइट साइड में रहते हैं तो उसका बॉडी लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, मतलब जिस दिशा में डायरेक्शन में फिश जाना चाहते हैं उसका टेल का फिन ऑपोजिट साइड में रहता है. ये हो गया टेल फिन्स. और अनपेयर फिन्स मतलब जो अनपेयर रहते हैं, जो जोड़ा में नहीं रहते, वो फिन्स कैसे हेल्प करते हैं फिश को उसके बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में. ओके, so I hope all of you understand up to here very properly. So in this video we are covered with up to here, and all of you learn this chapter properly. In the next video we will discuss next topic of this chapter. Thank you students, have a good day, bye bye.